Hello friends, welcome to my channel. At the last post was my first video and this one is the second video. I hope you all are liking the videos and the content. First of all, I want to say that please subscribe the channel and press the bell icon and like the video for more updates and for more uploads. So today we will deal about the topic shoulder dystocia. Shoulder dystocia is one of the obstetric emergencies that can lead to a maternal as well as fetal mortality rate and morbidity rate to be increased one. So this condition has to be treated immediately as soon as diagnosed so that the fetal distress we can prevent and fetal life also we can prevent from death, as well as for the mother also we can prevent for making the worsen her condition during the time of labor. So first of all, shoulder dystocia definition. Okay, now, definition of the shoulder dystocia: it occurs when anterior shoulder becomes trapped behind the symphysis pubis while the posterior shoulder may be in the hollow of sacrum or high above the sacral promontory. As in the definition said that here the anterior shoulder become tapped behind the symphysis pubis. यहाँ पे शोल्डर डिस्टोशिया में क्या हो रहा है कि जो इंटीरियर शोल्डर है फीटस का वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड टैप मीन्स सिम्फाइसिस प्यूबिस में वो अटक जाता है एट द टाइम ऑफ लेबर, एंड जो उसका पोस्टीरियर वॉल है वो हॉलो सैक्रम या हाई एबव द सैक्रल प्रोमेट्री पे जाके अटक जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज शोल्डर डिस्टोशिया एंड इट इज़ एन ऑब्स्टेटिक एमरजेंसी. Now we will see the risk factor. What are the risk factor for the shoulder dystocia? First one is the fetal macrosomia. If the fetal size is more than a normal fetal size, it also can lead to a shoulder dystocia. Then obesity of the mother, if the weight gain is mother is more, that can also lead for the not making a proper pathway for a birth canal to move the baby out. That can also lead a shoulder dystocia. Then maternal diabetes. In maternal diabetes the fetal weight gain is more, so that in that condition also shoulder dystocia occur. Post maturity of the fetus. If the fetus is become post maturated, then multiparity encephaly. If the baby head is absent, in that condition it can't be identified during the time of labor and can lead to a shoulder dystocia and fetal ascites. These are the risk factor for the shoulder dystocia. Now we will move for the management. How we can manage this shoulder dystocia, as it is an obstetric emergency, so it should be treated as soon as. First of all, the management, it should be given the short form for the management. Here for the management, short form is helper. First of all, help stand for the obstetric and pediatrician. Then E stand for episiotomy, L stand for leg elevation, and P stands for suprapubic pressure, and E stand for enter vagina for the internal rotation, and then R is stand for roll the woman over and try again. Then next R1 is for the remove posterior arm. These are the short form for the management. Now we will move to the management part. Here first of all, as we show in the abbreviation, जैसे कि हमने एब्रीविएशन में देखा कि सबसे पहले क्या करना है, कॉल फॉर द ऑब्स्टेट्रिशियन. ठीक है, हेल्प. यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही तुरंत हमें आइडेंटिफाई हो कि मदर को शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया है फीटस का, तुरंत हमें यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियंस को एंड द पीडियाट्रिशियन दोनों को तुरंत हेल्प के लिए कॉल करना है. देन फर्स्ट वी विल गो फॉर द मैक रॉबर्ट्स मैन्योर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर दैट आर यूज फॉर शोल्डर डिस्ट्रोशिया को
ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैक रोबोट मैन्योर यूज़ करेंगे। यहाँ पे थाइस को एब्डोमेन की तरफ मूव करना है। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको ये सारे प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। देन उसके बाद हमें सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देना है, अप्लाई करना है, एंड देन आफ्टर दैट डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म एंड इंटरनल रोटेशन मैन्योर को यूज़ करना है। आफ्टर दैट इन दिस द आर्म जो बेबी का है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। देन मदर को ऑल 4 पोजीशन देनी है एंड आफ्टर दैट कंप्लीट बेबी को डिलीवर कराना है। ओके, हियर द फर्स्ट वन इज मैक रॉबर्ट्स मैन्योर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व हाइवर फ्लेक्सिंग द मदर लेग टाइटली टू हर एब्डोमेन। इट इज़ इफेक्टिव ड्यू टू इंक्रीज मोबिलिटी एट द sacroiliac joint during pregnancy, allow rotation of the pelvis and facilitating the release of fetus shoulder, increase amplitude of contraction. In this मैक रॉबर्ट मैन्योर प्रोसीजर, इसमें हम क्या करते हैं कि मदर को यहाँ पे उसके थाइस को हाइपर फ्लेक्सिंग करना है। ठीक है, हाइपर फ्लेक्सिंग टुवर्ड द एब्डोमेन, उसके एब्डोमेन की तरफ उसके थाइस को हमें पूरी तरीके से बेंड करना है। इससे क्या होगा कि जो सैक्रोइलियक जॉइंट है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या है कि बेबी को फीटस शोल्डर जो इम्पैक्टेड है वो रिलीज़ आउट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें क्या करना है कि सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर क्या करना है, द गोल ऑफ सुप्रा प्यूबिक प्रेशर इज टू डिक्रीज द फीटल बाइसैक्रोमियल जॉइंट बाय अडक्टिंग द एंटीरियर फीटस शोल्डर. Pressure is applied to the suprapubic area in a downward fashion or a rock moving motion from the fetal back toward the front. यहाँ पे सुप्राप्यूबिक प्रेशर में जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या करना है कि मदर के सुप्राप्यूबिक एरिया पे प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो शोल्डर इम्पैक्टेड है प्यूबिस बोन में वो स्लाइड डाउन हो सके। उसके लिए हमें सुप्राप्यूबिक रीजन में यहाँ पे मदर के फोर्स अप्लाई करना है, प्रेशर। ओके, आफ्टर दैट रूबेंस मैन्योर, यहाँ पे क्या करना है कि परफॉर्म बाय प्लेसिंग अ हैंड इनटू द वेजाइना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेजाइना में हैंड को इंसर्ट करना है। देन अप्लाई प्रेशर टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल फीटल शोल्डर टुवर्ड द चेस्ट, फीटल चेस्ट। ओके, उसके बाद जैसे ही हम वेजाइना में हैंड को इंसर्ट करेंगे उसके बाद जो पोस्टीरियर एक्सपेक्ट्स है, जो शोल्डर सबसे पहले हमें मिल रहा है उस शोल्डर का जो पोस्टीरियर एक्सपेक्ट है वहाँ पे हमें प्रेशर अप्लाई करना है। किसकी तरफ, फीटस के चेस्ट की तरफ उस शोल्डर पे हमें प्रेशर अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि लीड टू एडक्शन ऑफ फीटस शोल्डर विच वुड देन अलाउ द एंटीरियर शोल्डर टू रोटेट एंड डिलीवर फ्रॉम बिहाइंड द प्यूबिक बोन वेयर इट इज़ इम्पैक्टेड। इससे क्या होगा कि जो फीटल का शोल्डर है, ठीक है, जो प्यूबिक बोन में इम्पैक्ट हुआ है वो क्या होगा, इंटरनल शोल्डर जो है वो रोटेट होगा। ठीक है, एडक्शन ऑफ फीटल शोल्डर, एडक्शन मतलब फीटल शोल्डर नज़दीक आएगा एंड देन उसके बाद इंटरनल रोटेशन होने की वजह से क्या है, जो प्यूबिक बोन में इम्पैक्टेड है वो डिलीवर हो जाएगा। देन लाइक आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है जो मोस्ट एक्सेसिबल शोल्डर है टुवर्ड द फीटल चेस्ट की तरफ। देन उसके बाद नेक्स्ट है वुड्स क्रॉक स्क्रू मैन्योर। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। अब क्या करना है इसमें कि प्लेस अ हैंड ऑन द एंटीरियर एक्सपेक्ट्स ऑफ पोस्टीरियर फीटस शोल्डर। अब इसमें हमें क्या करना है कि हैंड को जो उसका पोस्टीरियर फीटस शोल्डर है, फीटस का जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसके एंटीरियर एक्सपेक्ट्स पे हमें हैंड को प्लेस करना है। देन रोटेट द शोल्डर टुवर्ड द फीटल बैक। उसके बाद
फीटस के शोल्डर को रोटेट करना है, बैक साइड्स में रोटेट करना है एंड रोटेट द फीटस शोल्डर 180 डिग्री। और कितने डिग्री में रोटेट करना है? 180 डिग्री पे रोटेट करना है। अलाउ द फीटस टू डिसेंड वाइल द रोटेशन इज अकरिंग। और जब रोटेशन हो रहा है उस टाइम पे फीटस अगर डिसेंड कर रहा है तो उसको अलाउ करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग वुड क्रॉक स्क्रू मैन्योर में कि पहले हम उसके पोस्टीरियर शोल्डर पे एंटीरियर एक्सपेक्ट पे हैंड को प्लेस कर रहे हैं, देन हम 180 डिग्री पे फीटस के शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं बैक साइड की तरफ से। देन फीटस अगर डिसेंड हो रहा है तो उसको हम अलाउ कर रहे हैं बाहर आने के लिए, लाइक दैट इन आप डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है? डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म। शोल्डर बाहर आ जाने के बाद अब डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म करना है। इसमें क्या करना है? स्लाइड अ हैंड अलोंग द फीटल पोस्टीरियर शोल्डर एंड आर्म। जो फीटस का पोस्टीरियर शोल्डर है और आर्म है उसको हमें बाहर निकालना है, स्लाइड करना है। द फीटल फोर आर्म और रिस्ट इज ग्रैप्स्ड एंड स्वेप्ट अक्रॉस द एंटीरियर फीटल चेस्ट टू इफेक्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे हैंड को वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद फीटस के फोर आर्म या रिस्ट एरिया को ग्रैप्स होल्ड करना है, उसको पकड़ के फिर स्वेप उसके एंटीरियर चेस्ट से होते हुए उस हैंड को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म। देन हम क्या करेंगे? उसके बाद ऑल फोर पोजीशन। उसके बाद मदर को ऑल फोर पोजीशन देना है। गैस्किन मैन्योर इसको बोला जाता है। इन्वॉल्व मूविंग द मदर टू एन ऑल फोर पोजीशन विद द बैक आर्क वेंडिंग द पेल्विक आउटलेट। हियर जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मदर को ऐसी पोजीशन देनी है। देन डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑन द पोस्टीरियर शोल्डर हेल्प टू फ्री द इम्पैक्ट शोल्डर। देन हमें क्या करना है कि डाउनवर्ड ट्रैक्शन अप्लाई करना है। कहाँ पे? पोस्टीरियर शोल्डर पे डाउनवर्ड ट्रैक्शन मतलब नीचे की तरफ हमें पोस्टीरियर शोल्डर को खींचना है ताकि जो इम्पैक्टेड शोल्डर है वो फ्री हो सके। ओके गाइज, ये सारे क्या है? प्रोसीजर है शोल्डर डिस्टोशिया, मतलब जो शोल्डर प्यूबिक बोक में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए ये सारे प्रोसीजर हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर मदर को शोल्डर डिस्टोशिया हुआ है एट द टाइम ऑफ लेबर, शोल्डर डिस्टोशिया के चांस हैं या अकर हुआ है, देन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखें तो एस्फेक्सिया, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे फीटल को क्या है? ऑक्सीजन की स्कार्सिटी होगी, इसकी वजह से उसको एस्फेक्सिया होने लगेगा। देन ब्रेकियल पैक्सिस इंजरी, उसके ब्रेकियल पैक्सिस में इंजरी होने के चांस है। देन ह्यूमर फ्रैक्चर, एज वी ऑल नो हियर सो मच ऑफ प्रेशर, हम कई सारा यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं शोल्डर को बाहर निकालने के लिए, उस टाइम पे ह्यूमर फ्रैक्चर होने के चांस है। देन स्टर्नोमेस्टॉइड हेमाटोमा, यहाँ पे स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स जो होती हैं उसमें हेमाटोमा, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हेमाटोमा अकर होने के चांस हैं। देन हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी है तो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के लिए हायर रिस्क है। देन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की तरफ अगर हम देखें तो मदर में हमें PPH हो सकता है, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज। देन सर्वाइकल, वेजाइनल एंड पेरिनियल टीयर, ओके, यहाँ पे सर्वाइकल, वेजाइनल एंड पेरिनियल टीयर मदर को हो सकता है। बर्थ कैनाल इंजरी अकर हो सकती है। देन हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मदर को हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के चांस बढ़ जाते हैं। ओके गाइज, these are called about the shoulder dystocia. I hope you all are understood and thank you for today's session. Hopefully आपको शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, आई वंस अगेन आई से, because for getting a new uploads videos. Thank you everyone.